Now, before we begin, let's just close our eyes and look to God in prayer. शुरू करने से पहले क्यों ना हम परमेश्वर की ओर ताकि आंखें बंद करके, Because we need the Holy Spirit. क्योंकि हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है. Amen. आमेन. Blessed Spirit of God, we welcome your ministry. आशीषित पवित्र आत्मा, हम आपकी शिक्षा का स्वागत करते हैं. You are the one who leads us to Jesus. आप हमें यीशु की ओर लेके चलते हैं. The one who makes Jesus real to us. आप वो हैं जो यीशु को हमारे लिए वास्तविक बनाते हैं. So, blessed Holy Spirit, our teacher, तो आशीषित पवित्र आत्मा हमारे शिक्षक, we rely on your anointing हम आपके अभिषेक पर निर्भर हैं to preach, कि हम प्रचार करें, to teach. जो सिखाए. And more than anything else, we need your anointing this morning, Lord, to learn the word of God. और सबसे बढ़कर पवित्र आत्मा आपके अभिषेक की हमें जरूरत है कि आज हम सीख सके परमेश्वर के वचन से. God, Holy Spirit, I can only speak, परमेश्वर पवित्र आत्मा, मैं सिर्फ बोल सकता हूँ, but you are the one who teaches us. पर सिर्फ आप ही हैं जो हमें सिखा सकते हैं. So, Lord Jesus, may your anointing तो पवित्र आत्मा यीशु, आपका अभिषेक rest over this place, इस स्थान पर आने पाए to open the eyes of our inner man, कि हमारे भीतरी आंखें खोले, आत्मिक आंखों को खोलें, to see Jesus, जिससे कि हम यीशु को देख सकें, to see the truths of his kingdom. जिससे हम उसके राज्य के सच्चाई को देख सकें. So, blessed Holy Spirit, glorify Jesus this morning, we pray. तो आशीषित पवित्र आत्मा यीशु को महिमा देते हैं आज के दिन. And precious Lord, to you we give all the glory. तो प्यारे पिता, आपको हम सारी महिमा देते हैं. Oh God the Father, we thank you for what you're doing. पिता, आपका धन्यवाद करते हैं जो कुछ आप कर रहे हैं उसके लिए. In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं. Amen. आमेन. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Let's go over to the book of James, chapter 1, याकूब की पुस्तक खोलते हैं, हम पहला अध्याय, verse 12 to 16. उसका 12 से 16वें पद तक देखेंगे. There's quite much to read today. बहुत कुछ पढ़ना है आज हमें. The book of James, chapter 1, verse 12 to 16. याकूब की पुस्तक पहला अध्याय 12 से लेके 16 तक हम पढ़ेंगे. Now, before we read, let me just mention this, what I just began. इससे पहले कि हम पढ़ें, मैं आपको बताता हूं कि हम क्या सीखने वाले हैं आज. Let's not forget that while we are living here on earth, we are in the midst of two kingdoms. हम ये ना भूले कि जब हम इस पृथ्वी पर जीते हैं, हम दो राज्यों के बीच में हैं. The kingdom of God परमेश्वर का राज्य and the kingdom of darkness. और अंधकार का राज्य. The kingdom of light, प्रकाश का राज्य which is the kingdom of God. जो परमेश्वर का राज्य The है. kingdom of darkness, अंधकार का राज्य which is the kingdom of the enemy, the devil. जो शत्रु शैतान का राज्य है. Whether you like it or not, whether you believe it or not, each and every one is in either one of these kingdoms, and each and every one are operating for either one of these kingdoms. चाहे आपको पसंद हो चाहे ना पसंद हो, चाहे आप विश्वास करें या नहीं करें, पर हम में से हर एक किसी ना किसी राज्य के लिए कार्य कर रहा है और किसी ना किसी राज्य में जीता है. What is the nature of God's kingdom? परमेश्वर के राज्य की प्रकृति क्या है? Righteousness, धार्मिकता, peace, शांति, joy. आनंद. Hallelujah. हालेलुया. The foundation of God's kingdom is righteousness. परमेश्वर के राज्य की नींव धार्मिकता है. Hallelujah. हालेलुया. How do we attain this righteousness? हम कैसे उस धार्मिकता को पा सकते हैं? Not through our good works. सिर्फ अपने अच्छे कार्यों के द्वारा नहीं. All our good works are filthy rags. हमारे सारे अच्छे कार्य सिर्फ पोछे के समान है, बेकार कपड़े के समान है. Righteousness is achieved only through faith. धार्मिकता सिर्फ हम विश्वास के द्वारा पा सकते हैं. Faith in Jesus Christ. यीशु मसीह पर विश्वास. Amen. आमेन. That's the foundation of God's kingdom. That's the foundation through which the kingdom of God functions here on earth. यही परमेश्वर के राज्य की नींव है. इसी के द्वारा परमेश्वर का राज्य कार्य करता है इस पृथ्वी पर. Amen. आमेन. The kingdom of God is righteousness, peace and joy. परमेश्वर का राज्य धार्मिकता है, शांति है और आनंद है. It doesn't stop by that. पर इतना ही नहीं है, It says in the Holy Spirit. पर ये कहता है कि पवित्र आत्मा में. Hallelujah. हालेलुया. The Holy Spirit, the person of the Godhead here on earth, He is the one who enables us to put
faith in Christ Jesus, He is the one who enables us to become the righteousness of God in Jesus Christ. पवित्र आत्मा जो परमेश्वर का वो हिस्सा है जो हमारे बीच में कार्य करता है, हमारे भीतर कार्य करता है, वो हमें सामर्थ देता है कि हम यीशु पर विश्वास रखें, वो हम यीशु के साथ चलें। God the Holy Spirit is here on earth. परमेश्वर का पवित्र आत्मा इस पृथ्वी पर है, He has a way of operating. उसका एक कार्य करने का तरीका है, And He always functions, or you can say the kingdom of God always functions based upon certain principles. परमेश्वर का राज्य और पवित्र आत्मा हमेशा कुछ नियमों के अनुसार चलता है, And that's what we're going to learn today and tomorrow. और आज हम उन्हीं नियमों को सीखेंगे Because we need the Holy Spirit. क्योंकि हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है के लिए। When you pray in tongues, जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे He हैं, begins to hover and move over those areas. वो आपके जीवन के उन क्षेत्रों पर मंडराना शुरू करता है, He begins to till every hard surface in those areas. वो हर एक कठोर सतह को वो मुलायम करना शुरू करता He है, begins to prepare the ground, break the hard ground in those areas. वो भूमि को तैयार करता है, वो कठोर भूमि को मुलायम करता है। Hallelujah. That's why He gives us the Holy Spirit. इसलिए तो परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया है, That's why He gives us the gift of tongues. इसलिए उसने हमें अनन्य भाषा में प्रार्थना करने की भेंट दी Friends, है। let me tell you, if you have no other gift of the Holy Spirit in your life, the only one gift that you badly really need is the gift of speaking in tongues. मैं आपको बताता हूँ, अगर आपके पास कोई भी भेंट नहीं है परमेश्वर की ओर से, आपको सिर्फ एक भेंट की जरूरत है, वो है अनन्य भाषा में प्रार्थना करना। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। When you pray in tongues, जब आप अनन्य भाषा में प्रार्थना the करते हैं, Holy Spirit is working in those areas you cannot see. पवित्र आत्मा उन आपके जीवन के उन क्षेत्रों में कार्य करता है जो आप देख भी नहीं सकते, Because we are in the midst of two kingdoms. क्योंकि हम दो राज्यों के बीच में हैं, But we belong to the kingdom of God. पर हम परमेश्वर के राज्य में रहते हैं, The kingdom of God has no power over a child of God. और परमेश्वर The के kingdom of darkness has no power over a child of God. अंधकार के राज्य का कोई भी अधिकार नहीं, कोई भी सामर्थ नहीं है परमेश्वर के संतान के ऊपर। But living in this world, पर इस संसार में जब हम जीते हैं, these two kingdoms are in conflict. ये दोनों साम्राज्य जो है ये आपस में हमेशा युद्ध में रहते And we हैं। live in a physical world. हम एक शारीरिक संसार में रहते So हैं, therefore there are certain areas where the kingdom of darkness still is ruling over. तो वहाँ कुछ ऐसे भी क्षेत्र होते हैं इस संसार में जहाँ अंधकार का राज्य है, But we have the CEO of God's kingdom here on earth, who is the Holy Spirit. पर हमारे पास परमेश्वर के राज्य का सीईओ सबसे उच्च अधिकारी है और वो है पवित्र आत्मा। So understand, every gift we see in operation is a manifestation of the CEO of the kingdom of God expansion work here on earth. तो जो कुछ आप प्रकट रूप में देखते हैं परमेश्वर के राज्य में पवित्र आत्मा के द्वारा, वो पवित्र आत्मा एक सीईओ होने के नाते परमेश्वर के राज्य को फैलाने के लिए उस सब को कर रहा है। That's why we badly need the Holy Spirit. इसलिए हमें बहुत ज्यादा जरूरत है पवित्र आत्मा की। Do you want to be used by God? क्या आप परमेश्वर के द्वारा इस्तेमाल किया जाना चाहते हैं? In your family, आपके परिवार में God has a plan for your family for 2023, November, December. 2023 के नवंबर और दिसंबर के महीने के लिए परमेश्वर का एक योजना है आपके परिवार के लिए। God has a plan in 2024 for your family. परमेश्वर का एक योजना है आपके परिवारों के लिए 2024 साल के लिए भी। The Holy Spirit और पवित्र आत्मा is the one ही है वो व्यक्ति who knows God's plan. जिसको पता है परमेश्वर की योजनाएं। The kingdom of God has a plan for 2024 and the coming years for this wonderful blessed nation. परमेश्वर के राज्य की एक योजना है इस अद्भुत देश के लिए आने वाले अगले साल में 2024 साल में। I don't know मुझे नहीं पता what is God's plan for me, परमेश्वर की क्या योजना है मेरे जीवन से, but He, the Holy Spirit, पर पवित्र आत्मा you be there. He knows उसको पता है, everything that is a mystery for me. जो कुछ मेरे लिए रहस्य है वो सब पता है उसे। How to be involved in God's kingdom expansion work here on earth, which was a mystery for me, is known in full detail and clarity by this person called the Holy Spirit, who is the kingdom of God expansion CEO here on earth. मुझे क्या करना है परमेश्वर के राज्य को फैलाने के लिए, वो सब मेरे लिए मनुष्य होते हुए एक रहस्य की बात है, पर सिर्फ पवित्र आत्मा जो परमेश्वर के राज्य को फैलाने के लिए सीईओ सर्वोच्च अधिकारी है,
उसको पता है एक एक बारीकी की मुझे एक एक पल पे क्या करना है। I told him, मैंने उससे कहा, Holy Spirit, पवित्र आत्मा, you told the church of Antioch, आपने अंताकिया की कलीसिया को बताया, separate unto me Saul and Barnabas मेरे लिए शाऊल और बरनबास को अलग कर दो, for the work that you have called them for. उस कार्य के लिए जो मैंने और परमेश्वर ने चुना है करने के लिए। The book of Corinthians says, कुरिन्थियों की पुस्तक कहती you है, are the one who gives gifts. आप ही हो जो वरदानों को देता है। It's the same one and the same Spirit who gives gifts. यही वो इकलौती आत्मा है जो वरदानों और भेंटों को देती है। Do you belong to the kingdom of God? क्या आप परमेश्वर के राज्य के वारिस हैं? God's kingdom. Listen to me. God's kingdom and the board of God's kingdom has a plan for your life. परमेश्वर के राज्य के एक जो भाग है, उनकी एक योजना है आपके जीवन के लिए। The Holy Spirit has a will. पवित्र आत्मा की एक इच्छा है। He is a person. वो एक व्यक्ति है। He has a will. उसके पास एक इच्छा है। He has a mind. उसका एक मन है। Hallelujah. हालेलुया। Your Christian walk with Jesus begins to be so exciting, so fun, so real, so meaningful when you get to know the person of the Spirit of God. आपका जीवन परमेश्वर के साथ जो जीवन है और जो यीशु के साथ आपका रिश्ता है, चलन है, वो बहुत ज्यादा मनोरंजक हो जाएगा और बहुत ज्यादा आपको मजा आएगा उस जीवन को जीने में, जब आप पवित्र आत्मा के द्वारा उसकी योजनाओं को जानते चले जाओगे। Hallelujah. So, what does the scripture says? तो वचन क्या कहता है? When we pray in tongues, जब हम आत्मा में प्रार्थना करते हैं, we utter these mysteries. हम उन रहस्य की बातों को बोलते हैं। Hallelujah. हालेलुया। When we pray in tongues, जब हम अनन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, we utter, meaning we speak forth these mysteries. हम बोलते हैं, घोषणा करते हैं उन रहस्य की बातों को। Hallelujah. हालेलुया। So, which means इसका मतलब है God's plan for my life, which is a mystery मेरे जीवन के लिए जो योजना है परमेश्वर की, जो मेरे लिए रहस्य था, for me, वो जो मेरे लिए रहस्य था, but not for the Holy Spirit. पर वो पवित्र आत्मा के लिए रहस्य नहीं था। When I tell the Holy Spirit, Holy Spirit, जब मैंने पवित्र आत्मा से कहा, पवित्र आत्मा, I want God's plan for my life to be fulfilled. मैं जानना चाहता हूँ कि परमेश्वर की योजनाएं मेरे जीवन के लिए पूरी हो। My children have such and such need. मेरे बच्चों की ये जरूरतें हैं। My children are facing such and such problems. मेरे बच्चे इन समस्याओं से जूझ रहे हैं। Where to work? कहाँ काम करना है? Whom to marry? किससे शादी करनी है? What's going to happen in India? भारत में क्या होने वाला है? What's going to happen in my village? मेरे देश में क्या, मेरे गांव में क्या होने वाला My है? father, my mother, my brother. These all are mysteries. मेरे पिता, मेरे भाई, मेरी माता, उनके साथ क्या होगा, वो सब कुछ रहस्य है। I don't know what to pray for, how to pray for. मुझे नहीं पता मैं क्या प्रार्थना करूं, किससे प्रार्थना करूं। But Spirit of God, पर पवित्र आत्मा help me to pray your will. मेरी सहायता करे कि मैं आपकी इच्छा के लिए प्रार्थना करूं। You know what the Holy Spirit does? पता है पवित्र आत्मा क्या करता है? When we surrender our will जब हम अपनी इच्छा को समर्पित कर देते हैं उसके आगे, to the Holy Spirit, पवित्र आत्मा के आगे, He takes over. वो आगे आ जाता है, He takes over. वो अधिकार लेता है। Hallelujah. हालेलुया। And when we pray in tongues, और जब हम अनन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, when we pray in tongues, जब हम अनन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं, what's He doing? वो क्या कर रहा है? That which is a mystery for me, जो मेरे लिए रहस्य था, He puts it into my spirit, वो मेरे आत्मा में उसे डालेगा, and my spirit, और मेरा आत्मा by the help of the Holy Spirit, पवित्र आत्मा की सहायता से begins to utter forth in another tongue that mystery. वो ऐसी भाषा में जो मेरे लिए रहस्य है उसे बोलना शुरू करेगा, मेरा आत्मा पवित्र आत्मा की So मदद से। every time when I'm praying in tongues, what am I doing? तो जब भी मैं अनन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ? I am uttering forth the plans of God, the purposes of God for my life, which is a mystery for me. I am uttering forth in the Spirit. मैं आत्मा में परमेश्वर की जो योजनाएं हैं, उसके जो उद्देश्य है मेरे जीवन के लिए, इस देश के लिए, हर चीज के लिए, उन्हें बोल रहा हूँ आत्मा के द्वारा।
The moment we become a child of God, God gives us the Holy Spirit with the ability to speak in tongues, utter forth the mysteries of God for our life. तो जैसे ही हम परमेश्वर की संतान बनते हैं, सबसे पहले परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा के द्वारा अनन्य भाषा का वरदान देता है, जिससे कि हम उन रहस्यों को बोल सके। Hallelujah. हालेलुया। So when we pray in tongues, तो जब हम अनन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, when we pray in tongues, जब हम अनन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे the हैं, Holy Spirit begins to hover over our lives. पवित्र आत्मा हमारे जीवन पर मंडराना शुरू करता He है। begins to move over those dark areas, वो उन हमारे जीवन के अंधकार के क्षेत्रों पर मंडराता है, over our children's lives, हमारे बच्चों के जीवनों पर, over our villages. हमारे गांव पर। When we pray in tongues, जब अनन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं, He prays in perfect accordance to God's will for our life. पवित्र आत्मा परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बिल्कुल सटीकता से प्रार्थना करता है हमारे जीवन के लिए। Amen. आमेन। But पर if we look at our lives where we are today, अगर हम अपने जीवन में जहां अभी हैं उसको देखें, we have made many mistakes हमने बहुत गलतियां करी हैं। in the decisions we made. जो हमने फैसले लिए उसमें बहुत गलतियां की। We have made several mistakes. हमने काफी सारी गलतियां की हैं। Hallelujah. हालेलुया। And because of those mistakes, और उन गलतियों की वजह से certain areas of our life suffer. हमारे जीवन के कुछ क्षेत्र सह रहे हैं, Because of some mistakes हमारी कुछ गलतियों की वजह से, which we made in our weakness. जो हमने अपनी अज्ञानता में, दुर्बलता में की। Also, because of some mistakes we made because of the weakness in our flesh, which is also called sin. हमने अपने शरीर की दुर्बलता में भी, जिसे पाप कहा जाता है, उसमें भी कई गलतियां की। Many mistakes have happened बहुत सारी गलतियां होती हैं। because of our sin. हमारे पाप की वजह से Certain dark areas have come in. हमारे जीवन में कुछ अंधकार के क्षेत्र आ जाते As हैं। a- when you pray that, जब आप ऐसे प्रार्थना करते हैं, when you say, जब आप कहते हैं, God, परमेश्वर restore my life. मुझे पहले जैसा करे, मेरे जीवन को पहले जैसा करे। Father in heaven, परमेश्वर पिता, Jesus in heaven, यीशु जो स्वर्ग में है, restore my life मेरे जीवन को पुनः स्थापित करे into the fullness of your perfect plan. अपनी वो बिल्कुल परिपूर्ण इच्छा के अनुसार। And then when you pray like that, और जब आप ऐसे प्रार्थना करते हैं, He begins to move. पवित्र आत्मा कार्य करने लगता है। Holy Spirit begins to move. पवित्र आत्मा कार्य करने लगता है। How will He take over? कैसे वो अधिकार लेगा? He tells me, वो मुझे बताएगा, son, पुत्र, it's okay ठीक है, with God. परमेश्वर के साथ, All things are possible. परमेश्वर के साथ सब कुछ संभव है। For every mistake you have done, चाहे कोई भी गलती तुमने की हो, the kingdom of darkness may be happy. परमेश्वर, वो अंधकार का राज्य खुश हो सकता है, But no, my dear son, पर ये जान लो मेरे बच्चे, for every lost years the devil might have taken, if you will surrender your tongue unto me and let me pray through you, God in his might will restore 100-fold all the lost years which the devil has taken from you. वो हर एक खोए गए साल जो तुमसे शत्रु ने चुरा लिए, शैतान ने चुरा लिए, अगर तुम अपनी जीव को मेरे हवाले कर दो, अगर तुम अनन्य भाषा में प्रार्थना करो, तो पहले जैसे, बल्कि मैं पहले से भी 100 गुना बेहतर पुनः स्थापित करूंगा तुम्हें। It doesn't matter what may be happening in your life. फर्क नहीं पड़ता आपके जीवन में क्या हो रहा है। You might have made wrong decisions. हो सकता है आपने गलत फैसले लिए, And because of those wrong decisions, और उन गलत फैसलों की वजह your से family may be suffering today. आपका परिवार हो सकता है संघर्ष कर रहा Your हो, children may be suffering today. आपके बच्चे सह रहे हो, Your nation may be suffering today. आपका देश दर्द से करा रहा हो, But when you let me pray through you in tongues, पर जब तुम मुझे पवित्र आत्मा को अनन्य भाषा में प्रार्थना करने दोगे, I, God the Holy Spirit, as you let me pray through you in tongues, मैं पवित्र आत्मा तुम्हें अनन्य भाषा में प्रार्थना करवाऊंगा। you want to know what happens? जानना चाहते हैं क्या होगा उसके बाद? When you begin to pray in tongues, all things work together जब आप अनन्य भाषा में प्रार्थना करते हो तो सब बातें मिलाकर भलाई को उत्पन्न करती है, for good भलाई के लिए होती हैं for वो, those who love God. उनके लिए जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। Hallelujah. हालेलुया। It doesn't matter what may have happened in your life because of your weakness and because of your wrong decisions. फर्क नहीं पड़ता आपकी गलतियों, आपकी दुर्बलताओं में, आपके गलत फैसलों में आप कहां पहुंच गए हो उनकी वजह से। When you begin to pray in tongues, जैसे ही आप अनन्य
भाषा में प्रार्थना करना शुरू करते हो, God the Holy Spirit पवित्र आत्मा will turn all those bad things which happen in your life unto good. जो कुछ गलत आपके जीवन में हो, जो कुछ गलत बातें हुई, उन सबको वो भलाई में बदल देता है। Hallelujah. हालेलुया। That's why the Holy Spirit, इसलिए पवित्र आत्मा He is the one who restores our life. वही है जो हमारे जीवन को पुनः स्थापित करता है। When you're praying like this, जब आप ऐसे प्रार्थना करते He'll हैं, give you visions. आप दर्शन देखेंगे। When you pray like this, जब आप प्रार्थना करते हैं He will ऐसे, show you things. वो आपको चीजें दिखाएगा। When you're praying like this, जब आप ऐसे प्रार्थना He'll करेंगे, give you a rhema word वो आपको वचन देगा concerning your family, आपके परिवार के लिए, concerning your nation. आपके देश के लिए। And then you know और तब आप समझोगे with surety, पक्केपन के साथ, this is God's will for my life and for my nation. मेरे जीवन के लिए, मेरे देश के लिए यही है जो परमेश्वर की इच्छा है। Hallelujah. हालेलुया। And then और तब when the Holy Spirit will say, और जब पवित्र आत्मा कहेगा, now I have revealed to you God's plan. अब मैंने तुम्हें परमेश्वर की योजना दिखा दी है। Hallelujah. हालेलुया। He'll say, now वो कहेगा अब come into here चलो इसके साथ and pray. और प्रार्थना करते हैं चलो। Now when you pray here, और जब आप यहाँ प्रार्थना करोगे, your prayers are 100% according to God's will, because it was birthed, it was received in the Spirit. आपकी प्रार्थना 100% परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होगी, क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से आई और परमेश्वर की ओर से ही पैदा हुई है। And one more gift I want to touch this morning. एक और भेंट मैं आपको बताना चाहूंगा। When you have the gift of tongues and the gift of interpretation, God will immediately lead you into the operation of the gift of prophecy. जब आप अनन्य भाषा में प्रार्थना करने की भेंट आपको मिल गई और आप उसे समझ भी पा रहे हैं, उसका अनुवाद भी कर पा रहे हैं, तो परमेश्वर आपको खुद ब खुद भविष्यवाणी की भेंट में लेके जाएगा। Hallelujah. हालेलुया। That's why Paul said, I eagerly decide that every one of you will prophesy. इसलिए पौलुस कहता है कि मैं सबसे कहता हूं तुम में से हर एक भविष्यवाणी करेगा। Why? क्यों? Because when you prophesy, क्योंकि जब आप भविष्यवाणी करोगे, you begin by praying in tongues. आप अनन्य भाषा में प्रार्थना करने से शुरुआत करोगे। You speak in the mystery of God concerning your life. आप अपने जीवन, दूसरों के जीवन के लिए परमेश्वर की उस रहस्य को बोल पाओगे। In the spirit realm, the Holy Spirit begins to hover. आत्मिक आयाम में पवित्र आत्मा मंडराना शुरू कर दिया है। And the Holy Spirit begins to get the word of God in the spirit realm, and He begins to move in your life. और वो जैसे ही परमेश्वर के उस वचन को लेगा, पवित्र आत्मा उसको पाएगा, वो कार्य करने लगेगा। And when you operate in the gift of interpretation, you receive from God the Holy Spirit into your mind in the understanding the plans and purposes of God. और फिर आप उसको अनुवाद भी कर पाओगे जो रहस्य आपको मिले, और तब आप परमेश्वर की योजना को समझ पाओगे और उस पे चल पाओगे। And when you operate then with all of this in the gift of prophecy, और जब आप इन सब का इस्तेमाल करके भविष्यवाणी की भेंट में इस्तेमाल करोगे इसका, you are speaking forth the word of God, the plans of God for your life through your mouth. आप परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की योजना को अपने मुंह से बोल पाओगे। But understand, ये समझे, we need the Holy Spirit. हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है। Amen. आमेन। Today, आज this is the time when God is going to fill you with the Holy Spirit. ये वो समय है जब परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा से भरने जा रहा है। The more you get to know the Holy Spirit, जितना ज्यादा आप पवित्र आत्मा को जानोगे, you get to see the wrong things we have been doing. आप समझेंगे उन गलत चीजों को जो आप करते आ रहे थे आज तक। The more we begin to pray in tongues, जितना ज्यादा आप अनन्य भाषा में प्रार्थना करोगे, we get to see who the Holy Spirit is. आप पहचानोगे पवित्र आत्मा कौन है। We get to truly love Him. आप उससे प्रेम करने लगोगे। We get to understand how He works. आप समझोगे वो कैसे कार्य करता है। Friends, let me tell you, मेरे दोस्तों, मैं तुम्हें बताता हूँ, the only person of the Godhead here on earth परमेश्वर का वो हिस्सा जो इस पृथ्वी पर है, is the Holy Spirit. वो इकलौता हिस्सा वो पवित्र आत्मा है। Get to know Him. आपको उसे जानना होगा, Get to walk with Him. उसके साथ चले। He has a mind. उसका एक मन है, He speaks. वो बोलता है, He loves to speak. उसे बोलना बहुत पसंद है, He wants to speak to you वो आपसे बात करना चाहता है every day. हर रोज। How do you open yourself to hear from Him? आप कैसे उसको सुनने के लिए खुद को खोल सकते हैं, अपने कानों को खोल सकते हैं? When you pray in tongues. जब आप अनन्य भाषा में प्रार्थना करें। Hallelujah. हालेलुया।